Hello students, so now in this video we're gonna see a very important topic and the last exercise of your chapter, that is exercise number 1.5 from the chapter number 1, which is based on the switching circuit, okay, or else we can say switching table. So in this video we'll see the summary of this exercise. So we'll start with the application of logic to switching circuit. Okay, there are some properties and laws, we can say, मतलब कुछ छोटा छोटा चीज़ जो तुम लोग याद रखना इन द स्विचिंग सर्किट. ओके, आफ्टर दिस ये सब बायड होने के बाद, एक्सप्लेनेशन होने के बाद, दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाला शीट को याद रखना है. आफ्टर दिस there are three types of sum. The first one is what? Okay, where you have to express the following circuit in the symbolic form. Switching circuit दिया रहेगा and then you have to convert that switching into symbolic form. That is the type number 1, switch to symbolic form. Type number 2 is what? You will have the symbol and then you have to convert the symbol into switching circuit. That is the type number 2. Type number 3 is what? You will have circuit, then you have to convert into symbolic form. Then after that symbolic form में convert करने के बाद then you have to minimize the switches. What do you mean by minimize the switches? मतलब ये symbolic form, पहले सर्किट है, सर्किट को you have to convert into symbolic form. ये symbolic form को you have to solve without using the truth table. अरे सर ऐसा कैसा? Without using the truth table, how we can minimize and how we can find the answer? देखो, what do you mean by without using the truth table? इसका मतलब होता है using the laws of logic, using the properties. कौन सा वाला? laws of logic जो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है. ये सो नो, लॉस ऑफ लॉजिक, दिस वन, ये सब प्रॉपर्टी. अरे सर ये वापस से आ गए ये सब प्रॉपर्टी. यस, so as I said in this exercise, in the last exercise, there are three types of sum in which the first and the second type it is very easy. थर्ड टाइप में सर्किट से सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट करना, अगेन इट इज़ वेरी सिंपल. इट इज़ लाइक टाइप नंबर 1 एंड टाइप नंबर 2. बट सिंबॉलिक फॉर्म को देन मिनिमाइज करना है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल. विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल का मतलब क्या है? ये सिंबॉलिक फॉर्म को सॉल्व करना है यूजिंग द लॉस ऑफ लॉजिक एंड देन यू हैव टू मिनिमाइज. ओके, सॉल्व करते 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 एक छोटा सर्किट लेके आना है. स्मॉल, मिनिमाइज मीन स्मॉल सर्किट. ये स्मॉल सर्किट का देन यू हैव टू ड्रॉ द स्विचिंग सर्किट. ओके, तो इन सिंपल लैंग्वेज आई विल एक्सप्लेन यू. क्वेश्चन में सर्किट दिया है, देन विल कन्वर्ट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म. आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू सिंबॉलिक फॉर्म, okay, you will minimize the switch by using the laws of logic. after that जैसे minimize करोगे एक small circuit मिलेगा. okay, उस small circuit का you have to draw the switching circuit. minimize होने के बाद ही then the final answer, मतलब again you have to draw the diagram. So that means we can say we have the diagram. फिर मतलब डायग्राम से वापस से क्या करना है? डायग्राम बनाना है. डायग्राम, तो ये थर्ड मेथड को ऐसे याद रखो, डायग्राम टू डायग्राम. दैट मीन्स सर्किट टू सर्किट. गॉट द पॉइंट? एंड इन दिस एक्सरसाइज द फर्स्ट एंड सेकेंड वन इट इज़ वेरी इजी. थर्ड it is little compared to first and second, it is little complex I can say.
नॉट दैट मच कॉम्प्लेक्स, लेकिन अगर प्रॉपर्टीज़ पता है तो ऑटोमेटिकली आपको ये एक्सरसाइज भी क्या हो जाएगा, ये वाला जो थर्ड मेथड भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा. ओके, सो इसके लिए लॉस ऑफ लॉजिक अच्छे से बाय हार्ट करो. व्हाट द पॉइंट? ओके, सो we'll see this application. Switching in parallel, switching in series, ये सब क्या क्या होता है. फर्स्ट we'll see this part, then we'll start with the type number 1. So type number 1 is what? Circuit to symbol. Type number 2 is what? Symbol to circuit. And type number 3, remember this type number 3 as circuit to circuit or diagram to diagram. Got the point? So let's begin with the last exercise of your chapter, that is exercise number 1.5, which is known as switching circuit or switching table. So now before dealing with this concept, application of logic to the switching circuit, we'll see type number 3 का this part first, this one. Okay, how to minimize the switch without using the truth table, that means using the laws of logic. पहले ये देख लेते हैं and then we'll start with the sum, because without knowing this, ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, मेथड है, थोड़ा टफ हो जाएगा. बिकॉज टाइप नंबर 1 एंड टाइप नंबर 1 इट इज़ कंपेयर टू थर्ड वन, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. तो वो फटाक दिन से हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा. इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा. तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट बिफोर सीइंग दिस विल सॉल्व 1 या 2 एग्जाम्पल without using the truth table. That means we'll try to minimize this big circuit. Okay, मतलब एज्यूम करो ये मुझे आंसर मिला है इतना बड़ा, और इसको मिनिमाइज करके ये वाला आंसर लेके आना है. दैट ऑल्सो विदाउट यूजिंग द ट्रुथ टेबल. मतलब ये हो गया ना, टाइप नंबर 3 का कॉन्सेप्ट हो गया ना. मिनिमाइज करना है विदाउट यूजिंग द ट्रुथ टेबल. दैट मीन्स विदाउट यूजिंग द ट्रुथ टेबल का मतलब है यूजिंग द लॉस ऑफ लॉजिक. लॉस ऑफ लॉजिक, यू हैव टू reduce दैट पैटर्न. ये वाला पैटर्न का reduce करना है, shrink करना है और छोटा आंसर लेके आना है. सो फॉर दिस, ओके, फॉर दिस इतना बड़ा सर्किट का, सी दिस इज अ मिनिमाइज आंसर एंड देयर इज इक्वल सिंबल. इक्वल सिंबल का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का जो भी आंसर रहेगा, द फाइनल आंसर, इट विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो इतना बड़ा पैटर्न का जो भी आंसर आएगा, ट्रू फॉल्स, इन टर्म्स ऑफ ट्रू और फॉल्स जो भी है, तो इसका भी आंसर क्या रहेगा, इट विल बी सेम. तो मतलब ये वाला पैटर्न को अपने को मिनिमाइज करना है विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल. तो फर्स्ट विल सी दिस सम, विल सॉल्व 1 या 2 एग्जाम्पल एंड देन विल स्टार्ट विद द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ योर एक्सरसाइज. ओके, okay, so we'll now we'll solve 2 या 3 example based on this without using the truth table. We'll see how to minimize a bigger circuit into a small. Okay. अभी कुछ बच्चे हैं जो मुझे पूछते हैं, सर why in the method number 3 we have to convert the given circuit into minimized form. Like your third number, type number 3 is what, you have to minimize the given circuit. मतलब फर्स्ट सर्किट दिया है, देन सिम्बॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन यूजिंग द लॉज ऑफ लॉजिक, ओके, उसको रेड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, एक छोटा वाला सर्किट में लेके आना है. तो कुछ बच्चे पूछते हैं, सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मिनिमाइजिंग द सर्किट. Anyhow, the output for this circuit, whatever the answer you will be getting, okay, इसके लिए भी सर सेम ही रहेगा. बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर the output for this circuit and the output for this circuit, it will be same only. So why we have to reduce the circuit? There are 2 points from which you will come to know why we have to reduce the circuit. The first one, देखो, अभी इतना बड़ा सर्किट है, इतना बड़ा सर्किट है,
और इतना ही है. सो इतना बड़ा सर्किट है, सर्किट को ज्वाइन करने के लिए सीरीज एंड पैरेलल में. ओके, सो ये and in switching circuit and is known as series or is known as parallel. So और का मतलब क्या होता है? parallel and means what? series. So when the switch, okay, when the switch they are connected in series and parallel, ओके तो ये स्विच के लिए इतना बड़ा स्विच है, देखो तो उतना बड़ा स्पेस चाहिए अपनों को फॉर कनेक्शन, एंड फॉर दिस स्विच स्पेस कम लगेगा. ओके, जब मार्केट में जाओगे तुम लोग बाय करने के लिए स्विच, ओके सपोज फॉर एग्जांपल इसके लिए कॉस्ट 100 रुपीज़ जाएगा, बट इसके लिए उतना थोड़ी जाएगा दो स्विच के लिए. चलो विल टेक ₹10. So why we have to reduce? We got the answer. Here is the answer. To reduce the amount of the switch and to reduce the space. देखो इसमें क्या हो जाएगा, जो आउटपुट मिलेगा इसमें भी आउटपुट क्या रहेगा, इट विल बी सेम. ये स्विच कनेक्ट करने के बाद अगर आपका करंट फ्लो होने के बाद बल्ब ग्लो होएगा तो इसमें भी तो ग्लो होने वाला है. बट क्या है प्रॉब्लम, इसमें यू विल रिक्वायर्ड मोर स्पेस एंड फॉर दिस यू विल रिक्वायर्ड स्मॉल स्पेस. फॉर दिस स्विच के लिए बाई करने के लिए ज़्यादा पैसे जाएगा, अमाउंट जाएगा, एंड फॉर दिस द अमाउंट विल बी लेस. तो मिनिमाइज करने का रीज़न क्या है? टू रेड्यूस द अमाउंट एंड द स्पेस, दैट्स इट. उसके लिए गॉट द पॉइंट. बट इन बोथ द केसेस द आउटपुट विल बी सेम. जब इसमें भी सेम आ रहा है इसमें भी सेम आंसर आने वाला है. सो देन वाई टू वेस्ट सो मच मनी एंड सो मच स्पेस? गॉट द पॉइंट. चलो सो वेल बिगिन विद द सम. सो कॉमन सेंस है, दिस द बिगर पार्ट, सो विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड. यस और नो? विल टेक द बिगर वन. Okay, and then you have to show that it is equivalent to P or Q. Yes sir. So now listen here. Okay, so इसके आगे सॉल्व करता हूँ. Equivalent, we have to show that this is equal to, ये सॉल्व okay, the final answer will be what? P or Q. So now we'll see how to reduce and how to minimize a bigger circuit. Okay, देखो दो चीज़ बताता हूँ यहाँ पर. फर्स्ट वन, ट्राई टू ब्रिंग कॉमन या सी द कॉमन, उसको बाहर निकालने की कोशिश करो, और एल्स ब्रैकेट ओपन. ये दो चीज़ याद रखो, ब्रैकेट ओपन एंड कॉमन. ओके, ट्राई टू सी द कॉमन, ट्राई टू ब्रिंग द कॉमन आउटसाइड. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से A प्लस B into ओके B प्लस C. सो इनटू है, सो ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन. ओके, फॉर एग्जाम्पल इन प्लेस ऑफ A विल टेक P, Q, and this is what? And Q or R. Okay, so whenever we have the combination of or and, so मैंने बताया था for combination of or and and when you have three switch or and, so bracket open. So when you will do the bracket open, so what will happen, किधर ना किधर ब्रैकेट ओपन में you will get, इसमें से कुछ लॉ मिलेगा जिससे सम क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व होएगा और सम रेड्यूस होते जाएगा. अंडरस्टूड? गॉट द पॉइंट? यस सर. और एल्स इफ आई से P and Q or negation of P and Q,
कैन यू सी नेगेशन ऑफ क्यू इज कॉमन. अगर मैं नेगेशन ऑफ क्यू कॉमन निकाला सो वी लेफ्ट विथ व्हाट पी और नेगेशन ऑफ पी. यस और नो. देखो कॉमन निकालने से क्या हो गया, वो रेड्यूस हो रहे हैं. ब्रैकेट ओपन से भी क्या होएगा, व्हाट विल हैपन, आगे इसमें से कुछ ना कुछ लॉ आ जाएगा और रेड्यूस होते जाएगा. तो ये दो चीज़ याद रखो. सो एज वी नो दैट व्हेन यू डू ब्रैकेट ओपन, देखो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट ओपन किया विथ पी और यू गॉट दिस आंसर. ओके, जब इन दोनों में से एक कॉमन निकाला सो यू विल गेट दिस आंसर रिवर्स. सो क्या ना इसे ब्रैकेट ओपन एंड कॉमन निकालना वो दोनों का मीनिंग क्या है, इट इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओनली. एज आई एक्सप्लेन्ड इन दैट वीडियो, इन द प्रीवियस वीडियो, जब मैं ये लॉज ऑफ लॉजिक एक्सप्लेनेशन कर रहा था तो मैंने बता दिया था द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को याद करो एज अ ब्रैकेट ओपन एंड कॉमन. यस और नो. ओके चलो. सो नाउ विल सी. So the first step here, what you will do, will take, देखो पहले सोचो कॉमन किधर मिल रहा है क्या. कैन यू सी हियर, इतना पार्ट देखो कॉमन मिल रहा है लेकिन बाकी ये वाला इससे कॉमन नहीं मिल रहा है पी एंड. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ व्हाट, ये सम को टैकल करने के लिए कॉमन निकालने की कोशिश करो या तो ब्रैकेट ओपन. ओके, सो बेसिकली फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट गिव द प्रेफरेंस टू कॉमन. कॉमन से क्या होगा, सम रेड्यूस होते जाएगा. यस और नो. चलो, सो मतलब इन दोनों को सॉल्व करना है. सो विल टेक दिस पार्ट टुगेदर. इन दोनों को मैं साथ में लिखता हूँ. सो दिस विल बी पी एंड क्यू, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, इन दोनों साथ में लिया और इसको अलग से रखता हूँ मैं, इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. विल कीप दिस पार्ट एज इट इज़. तो ये जो मैंने क्या किया, इधर मेरे पास तीन सर्किट है. देखो एज्यूम दैट दिस पार्ट एज पी, दिस पार्ट एज क्यू एंड दिस पार्ट एज आर, एंड दोनों का बीच का कनेक्शन इज सेम, बराबर. और फिर मैंने क्या किया, ये फर्स्ट दो में ब्रैकेट था तो ब्रैकेट चेंज किया. तो मतलब मुझे मालूम है कि इन दोनों में कॉमन आने वाला है. सो चेंजिंग द ब्रैकेट, ये फॉर्मूला का नाम क्या बोला था मैंने, प्रॉपर्टी को कैसे याद रखने बोला था, ये चेंजिंग द ब्रैकेट. यस और नो, चेंजिंग द ब्रैकेट. ब्रैकेट क्यों चेंज करना है, व्हाट इज़ द रीज़न, मैंने बताया था ब्रैकेट क्यों चेंज करना था. मतलब आप लोगों को मालूम है कि फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करने से यू विल गेट द आंसर. ओके, इफ़ यू फील दैट सेकंड और थर्ड को ब्रैकेट लेने से यू विल गेट द आंसर, तो सेकंड और थर्ड को ब्रैकेट लेना है. सो हियर वी कम टू द कंक्लूजन दैट व्हेन यू विल सॉल्व द फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, तो देखो व्हेन यू हैव द थ्री switches and the connection is what, same, connection same है, connection अलग है, मतलब ये वाला लॉ. ये सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है, वापस से जाके एक बार अच्छे से वीडियो देखो. ओके, सो तो यहाँ पर मैंने कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया, विच वन, दैट इज़ एसोसिएटिव लॉ. सो यहाँ पर रीज़न में यू विल राइट मैंने कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया था. ओके, एसोसिएटिव लॉ. चलो, आफ्टर दैट now here can I say here is a combination of C and an OR. Here we have the combination of and an OR, or else here clearly we can see that इतना सेक्शन क्या कॉमन है. यस और नो. सो मैं कॉमन निकालता हूँ. सो विल सी व्हाट यू विल गेट, पी और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, एंड दिस पार्ट विल कीप एज इट इज़, क्योंकि मैं इसको सॉल्व ही नहीं कर रहा हूँ, आती नहीं लगा रहा हूँ. चलो, ये प्रॉपर्टी के लिए क्या नाम देगी, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड और, एंड हियर वी हैव थ्री स्विच. देखो 1 2 3, नेगेशन ऑफ पी मतलब क्या है, स्विच अलग ही है ना. यस सर. सो मैंने क्या किया, कॉमन निकाला, ब्रैकेट ओपन मतलब क्या है, दोनों का मीनिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ना. तो इसके लिए रीज़न आएगा, यस सर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. यस सर. आफ्टर दैट कैन यू सी दिस पार्ट, this one,
वी हैव सेम स्विच, लेकिन वो जो स्विच है कॉम्प्लीमेंट है ना, अलग अलग है. सो ये लॉ दिख रहा है ना, complement when we have the same switch and the connection is OR, so answer will be T. When the connection is AND, the answer will be C. so यहाँ पर connection क्या है, okay, so the connection is what, OR, so answer is what, T, by using complement law. और इसको ऐसे रखता हूँ, दिस पार्ट विल कीप एज इट इज़, यस और नो. तो यहाँ पर मैंने कौन सा लॉ यूज़ किया, विच वन, कॉम्प्लीमेंट लॉ. ओके, नाउ आफ्टर दैट ध्यान से नोटिस करो, ये जो टोटोलॉजी है इट इज़ कनेक्टेड विथ क्यू, मतलब एक स्विच के साथ, एंड द कनेक्शन इज व्हाट, एंड. सो ये तो इसके ऐसा दिख रहा है, एक स्विच है एंड इट्स कनेक्टेड विथ टी और एल्स सी. सो एज वी नो दैट, ये देखो ये ऐसा उल्टा रहेगा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर, उससे फ़र्क नहीं गिरता. here also T or P, still you will get that same answer. Okay, so T and Q. Okay, so formula के हिसाब से here it is what, first switch ना, तो will right switch चलेगा, वैसा करो. तो मैंने इसको उल्टा किया तो what will happen, Q आएगा first and then and T और this part will keep as it is. तो ये मैंने उल्टा किया, रिवर्स किया. रिवर्स किया मतलब क्या होता है, विच वन लॉ, रिवर्स लॉ मीन्स कम्यूटेटिव, उल्टा किया ना मैंने. सो हियर विल राइट, कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया मैंने, कम्यूटेटिव लॉ. ओके, आफ्टर दिस वी नो दैट ए स्विच व्हेन इट इज़ कनेक्टेड विथ टोटोलॉजी, मतलब टी के साथ, स्मॉल टी स्टैंड फॉर टोटोलॉजी, एंड द कनेक्शन इज व्हाट, एंड switch and connection is tautology, so answer will be that switch. So here the answer will be what, इसका पूरा आंसर क्या आएगा, सिर्फ Q आ जाएगा. तो कौन सा लॉ यूज़ किया मैंने, आइडेंटिटी. सो ये पूरा का आंसर विल बी व्हाट, Q यूजिंग द आइडेंटिटी, एंड दिस इज P एंड नेगेशन ऑफ P. यस सर. तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यूजिंग विच लॉ, आइडेंटिटी लॉ. मुझे आंसर मिला क्या, चेक करो. नो, वी रिक्वायर्ड P और Q, अभी तक नहीं मिला. ओके, सो फर्दर नाउ ये व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन, एंड और. मैंने स्ट्रेट अवे बोला, वेन एवर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड और, एक ही फॉर्मूला आएगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. एंड सी टू दैट इट शुड हैव द 3 डिफरेंट स्विच. तो ये 3 अलग ही स्विच है ना, यस और नो. Q, P and negation of Q. Negation of Q and Q, they are the 2 different switch. They are the complement switch. Assume this switch as R जैसा. So मतलब क्या करना पड़ेगा, अभी distributive law use करना पड़ेगा. So what is the distributive law? So the distributive law मतलब क्या, bracket open ना. So this part will be what, bracket open with this. तो Q और P, and second bracket में you will get Q और negation of Q, and we left with and. so यहाँ पर मैंने कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया, which one, okay, distributive law. got the point. okay, so now अब ध्यान से नोटिस देखो करो, यहाँ पर ये we have the same switch, complement, same switch, कॉम्प्लीमेंट, वेदर इट इज़ P या P की जगह पे Q रहने दो या Q की जगह पे R. 2 अलग स्विच दिख रहा है, कॉम्प्लीमेंट स्विच, तो अप्लाई कॉम्प्लीमेंट लॉ. सो इन द कॉम्प्लीमेंट लॉ व्हेन यू हैव द 2 स्विच इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये ट्रू है तो ये फॉल्स है. सो एंड द कनेक्शन इज और के साथ क्या हो जाएगा, और के साथ T आता है, और के साथ क्या आता है, T आता है, यस और नो. So here we can say that Q और P इसके साथ T हो गया, yes sir. So the final step, T वाला जो फॉर्मूला है, and consider this bracket को 1 switch,
विल कंसिडर दिस ब्रैकेट को वन स्विच, विल कंसिडर दिस ब्रैकेट को वन स्विच, मतलब एक एज्यूम करता हूँ मैं एज अ वन switch and it is connected with T and the connection is what and, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया आइडेंटिटी. सो P and T क्या हो जाता है, P बन जाता है, मतलब दिस पार्ट विल कम, द सर्किट द स्विच विल कम. ओके, T नहीं आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर में, what you will get is using the identity law this part will come, yes or no. तो फॉर्मूला कौन सा आ गया. Okay, justification we will write identity, yes or no, identity law. And the last part we required P और Q ना, मतलब उल्टा चाहिए, P और Q. So ये उल्टा हो गया, मतलब which law which will come. Okay, रिवर्स वाला, मतलब फाइनल आंसर के लिए ये रीज़न you will write what, by using commutative law we got the final answer. So मतलब actually when you will see the sum it is little complex. Okay, for कुछ बच्चों के लिए complex जाएगा और कुछ बच्चों को शायद हो सकता है कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल में ही समझ में आ जाएगा कि how to solve the sum. Again I will say if you want to be expert in this types of sum there is only one thing, that is practice. Without practice you cannot become expert in this types of sum. Practice करना है, try to solve minimum 5 to 6 types of sum which is based on this without using truth table. ऐसे नहीं कि मतलब एक ही सम में आपको समझ में आ जाएगा, ये जो पैटर्न था इसके हिसाब से you got this answer. जैसा पैटर्न चेंज होएगा of course the answer will be different only. तो जितना हो सके try to solve 5 to 6 example by yourself. There are many sums in the solved example, you can refer the solved example, then try the sums from the exercise. In exercise also there are 3-4 sums, or when you will see the problem set miscellaneous maybe there are some sums. Okay, so जितना हो सके example try करो. Okay, try to bring this answer. थोड़ा दिमाग लगाना है, ईजी है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, ईजी है. अभी ये सम को देर आर 2-3 डिफरेंट वे टू सॉल्व द सम, 2-3 अलग अलग तरीका है सॉल्व करने का. अभी एक तरीका मैंने ऐसा बता दिया, कुछ टीचर्स हो सकते हैं दे विल टीच इन डिफरेंट वे, ये सम को कुछ अलग ढंग से सिखाएंगे. ये वाला स्टेप में क्या करेंगे, कुछ टीचर्स ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दे विल अप्लाई. ओके, स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर, फाइनल आंसर यू विल गेट द सेम रिजल्ट यू विल गेट. ये वाला स्टेप के बाद. ओके, अगेन आई एम सेइंग देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ सम. ओके, 2-3 मेथड्स हैं. एक मेथड को फॉलो करना है, स्टिक विथ अ वन मेथड जो तुम लोगों को समझ में आ रहा है. ओके, एंड प्रैक्टिस द सम 2-3 टाइम्स, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट सम्स है, इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये सब सम्स आते हैं फॉर 3 to 4 मार्क्स. ओके, एंड ट्राई मिनिमम 5 to 6 सम्स बेस्ड ऑन दिस. ओके, हो सकता है कुछ बच्चों को फर्स्ट पार्ट में ही समझ में आ जाएगा, एक ही सम में समझ में आ जाएगा, किसी बच्चों को 2-3 सम्स करने के बाद समझ में आ जाएगा. बट आई विल से फॉर दो स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आया, सी दिस वीडियो फॉर 2-3 टाइम्स, फिर ईजिली समझ में आ जाएगा. एंड वन मोर थिंग, विदाउट नोइंग दिस लॉज ऑफ लॉजिक सम्स नहीं आएगा. सो प्लीज ट्राई टू बाय दिस लॉस ऑफ लॉजिक. ओके, and as I said, for without using the truth table, as I said, the fourth one, distributive law जितना हो सके बाय करो, which is very important. distributive law को याद कैसा करना है, as I said, common and bracket open. bracket open करो, you will get this answer, या common निकालो, you will get this answer. रिवर्स ना, अगर ये इससे इक्वल है तो ये भी इससे इक्वल रहेगा ना, that is known as distributive law. गॉट द पॉइंट. देखो कुछ टीचर ये वाला स्टेप में क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस स्टेप. मैंने ये वाला स्टेप किया, अंडरस्टूड. हियर ऑल्सो ये वाला स्टेप में भी कुछ टीचर्स क्या करेंगे, दे विल ब्रैकेट ओपन.
P से पहले करेंगे देन Q से करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके, स्टिल द आंसर विल बी सेम. Got the point? So refer this video, see this video for 2-3 times. So I will say I bet you ये आपको समझ में आ जाएगा and by at this loss of logic. Okay, we'll try one more sum. और एक sum देखते हैं. So I guess और एक sum देखने से शायद हो सकता है कि जिसको नहीं समझा उनको समझ में आ जाएगा, और जिसको ऑलरेडी समझा है this one, okay, उनको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. Okay, so we'll try one more sum based on this and see to it that 4th, 5th and 6th it has to be tip of tongue. This 3 law will play an important role for these types of sum: distributive, identity and complement. It is my survey, मैंने नोटिस किया है ज़्यादातर ये 4th, 5th and 6th ज़्यादा फार्मूला यूज़ होता है, गड़ी 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 गड़ी. सो ट्राई टू बाय इट. बाकी ये 3 फार्मूला तो ईजी है, ब्रैकेट चेंज, इसको रिवर्स, सेम स्विच, यस और नो. सेम स्विच मतलब क्या है, देखो इसका मतलब तो पता ही है ना, ट्रू और ट्रू विल बी व्हाट, ट्रू, यस और नो. इफ़ यू टेक फॉल्स और फॉल्स सेम, यू विल गेट फॉल्स. If you take true and true, so answer will be what, true. If you take true and false and false and false, the answer is false. मतलब जो रहेगा that answer you will get. मतलब दोनों भी सेम है स्विच, सो आंसर विल बी दैट पार्ट, सेम आंसर आ देखो. मतलब दोनों ट्रू है तो आंसर विल बी ट्रू, दोनों फॉल्स है तो आंसर. गॉट द पॉइंट. तो उसको ऐसा भी याद रखो तो चलेगा. अदरवाइज इफ़ यू हैव द सेम स्विच, द आंसर विल बी दैट स्विच. सिंगल में आंसर आ जाएगा. ओके, सो बहुत सारा चीज़ है यहाँ पर, ऐसा एक्सप्लेनेशन करने जाएगा तो वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा. ओके, सो दिस मच इज़ ओके. ओके, ट्राई द सम, मिनिमम सम्स 5 to 6 सम्स बेस्ड ऑन दिस, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा. सो विल टेक वन मोर सम. ओके, so we'll take one more sum based on this without using the truth table, and see to it that this types of sum, it is there in the exercise number 1.4 and as well as in the 1.5 exercise में type number 3 का switching circuit में, yes or no, which one, that minimize वाला, minimize circuit वाला, उसमें use होगा. And 1.4 complete exercise, not complete exercise, there are 2 question I guess. Question number 1, it is based on properties of negation, and question number 2, it is based on this one, without using truth table. Okay, so this without using truth table, it is there in 1.4 as well as in the 1.5 also. For science and for commerce, I guess it is there in 1.8 and 1.9 exercise, this one, this part. Okay, चलो we'll take one more sum, तो confidence आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा. So this is the switch, this is the circuit we can say, ये पूरा. okay, एज्यूम करो कि यहाँ पर एक सर्किट है कुछ, तो उसको मैंने कन्वर्ट करके ये आंसर मिल गया अपनों को. एंड स्विचिंग सर्किट, it is only for science, not for commerce. Commerce का switching circuit, it is replaced by Venn diagram. तो commerce को Venn diagram है. Okay, so now we'll take the left hand side and we'll show that it is equal to P. तो ये पूरा अपने पास switching circuit है, ये circuit लेते हैं अपनों. So that is P and P or Q, or Q and P or negation of Q. Okay, so ये पार्ट को सॉल्व करके it should be equal to P. चलो we'll start. So when you will focus on this part, first part पे ध्यान दो. Here we have only 2 switch, ध्यान से नोटिस करो, and the connection is and or. 2 switch PQ, connection is and or. First check, it is and then or, and or, whether it is or and, still the answer is P.
तो इसमें मेजोरिटी में सेम अल्फ़ाबेट कौन सा है चेक करो, सेम अल्फ़ाबेट कौन सा चेक करो, हियर इट इज़ पी, सो दैट आंसर विल कम. सो यहाँ पर द आंसर विल, फॉर दिस पार्ट द आंसर विल बी पी, और यहाँ पर जस्टिफिकेशन में यू विल राइट द रीज़न एब्सॉर्प्शन लॉ. यस और, सो ये पूरा का आंसर वी गॉट, पूरा का आंसर वी गॉट पी. सो here we left with what, or q and p or negation of q. So for this we'll write the reason what, absorption law. Got the point? Okay, so now after that, now listen here, देखो ध्यान से नोटिस करो, वी वांट p ना, p कहने से ये पूरा का आंसर वी गॉट पी. नोटिस करो ये पी एंड पी, मतलब ऑलरेडी वी गॉट दी आंसर. अभी सिर्फ ये सेक्शन को अपना सॉल्व करना है, सॉल्व करके लेट्स सी व्हाट यू विल गेट. एंड पी के साथ अगर कुछ भी आंसर है तो शायद हो सकता है द फाइनल आंसर विल बी पी ओनली. वी रिक्वायर्ड पी. पी देखो इंडिविजुअल अकेला मिल चुका है अपनों को ऑलरेडी. सो अभी इसके साथ ब्रैकेट ओपन ये सब नहीं करूँगा. विल कीप दिस पार्ट नाउ सेम एज इट इज़. विल ट्राई टू सॉल्व दिस पार्ट नाउ. लेट्स सी ये पार्ट को सॉल्व करके व्हाट विल गेट. नाउ क्यू पी नेगेशन ऑफ क्यू, तो ये कहने से एक्चुअली वी हैव 3 सर्किट. क्यू पी नेगेशन ऑफ क्यू मतलब ये डिफरेंट सर्किट हो गया ना. सो व्हेन इट इज़ अ डिफरेंट सर्किट एंड द कनेक्शन इज एंड एंड और, सो 1 2 3 स्विचेस, 3 स्विच कॉम्बिनेशन इज एंड और, मतलब कौन सा लॉ आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. विच वन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सो विल ब्रैकेट ओपन विथ q and, so q and p, yes or no, got the point. इसके साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे ना विथ दिस q and p, q and negation of q, we left with or. so ब्रैकेट ओपन किया मतलब नेम ऑफ द लॉ इज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. चलो now after that we'll see, we'll keep this p as it is because already वो चाहिए ना अपनों को, उसको ऐसे रखता हूँ. now we'll see here, we'll keep this q and p as it is क्योंकि इसके आगे सॉल्व नहीं होते, ऐसा मैंने एक्सप्लेन किया है. हाँ, here we have the same switch but कॉम्प्लीमेंट है ना अलग अलग. so we know that when we have the same switch, सेम दिख रहा है लेकिन कॉम्प्लीमेंट में है, and the connection is and, so answer will be C. तो यहाँ पर क्या आएगा, so answer is what, C. same switch complement में है and connection and then the answer will be C for this. तो यहाँ पर reason क्या आ जाएगा for this, answer is C and reason will be what, which one, complement law. complement law will come. okay, चलो now further we required this p na, we required this p, so तो p will keep as it is. और अब ध्यान से नोटिस करो this q and p, it is connected with c and the connection is और. तो ये c t के साथ जब भी कनेक्शन होता है सो कौन सा आता है, आइडेंटिटी लॉ. सो लिसन हियर, c, okay, C when it is connected with any switch, तो वो switch कुछ भी रहने दो, when it is connected in series or parallel में, okay, and the connection is and or, so we'll see अगर वो और में है so switch will come. when it is connected in and, so answer will be what, C. so it is connected with or, so answer will be what, that part na, that switch will come, मतलब q and p will come. yes or no, understood. okay, now the next part will see what, यहाँ पर कौन सा आएगा लॉ, कौन सा यूज़ किया मैंने, which one, आइडेंटिटी लॉ साइड में आना चाहिए रीज़न. okay, so now next can I say, here we have only 2 switch, only 2, and the connection is or and.
टू स्विच कनेक्शन और एंड. सो मतलब समझ में आ गया. एब्जॉर्प्शन लॉ विल कम, यस और नो. एब्जॉर्प्शन लॉ, बट चेक इट. व्हेन इट इज़ पी तो यहाँ पर भी पी है. व्हेन इट इज़ पी यहाँ पर भी पी, मतलब इसको उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा. सो विल राइट दिस स्टेप एज व्हाट, विल कीप दिस पी एज इट इज़, और ओके विल रिवर्स दिस. सो दिस विल बी व्हाट, पी, ओके, एंड क्यू. तो रिवर्स किया मतलब कौन सा लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ, यस और नो. law. So now the final step, can I say, using the absorption law. Absorption law, what does it state that, what do you mean by the absorption law? When you have the two switch only, PQ, and the connection is and or. When you have three switch and the connection is and or, मतलब distributive law, this will come. Three switch and or distributive, two switch and or absorption. So absorption में check करो कौन सा अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है, P. So here also we are getting P ना twice. So here the answer will be P. So we got the final answer. तो मतलब ये जो इतना बड़ा स्विच था उसको मिनिमाइज करके मुझे आंसर क्या मिला, P. Got the point? So in this way you have to present the sum, you have to solve the sum. Okay, try to reduce the sum. reduce करते जाओ तो एक छोटा स्विचिंग सर्किट मिल जाएगा आपको. Got the point? And whatever the justification is there, वो साइड में लिखते जाओ, ऐसा रीज़न जो भी है साइड में लिखते जाओ. Okay, so I guess it is enough. So here we saw the first one, this one, without using the truth table, how to show that left hand side is equal to right hand side, or else we can say how to minimize the bigger switch into small. And we took the second example also. Okay, so I guess though example enough here to understand this types of sum. Okay, so now we'll start with the actual sum of exercise number 1.5, that is sum based on switching circuit or switching table we can say. Okay, so till then, goodbye. In next video we'll start that sum.